1 minute. Okay. Similarly, when minute hand complete 1 round, so 1 hour. What time? So it complete 1 hour. Okay. Now, in 1 day, we have 12 hour of daytime and 12 hour of night time. It means we have overall 24 hour in 1 day. Next is 1 month. As you all know, in 1 month, sometime we have 30 days and sometime we have 31 days. And in February, we have 28 days, or sometime in every 4 years we have leap year. Okay? In 1 year, we have 12 months. As you all know the name of month: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. In this way, we have 12 months of the year. These are the basic information about time. Now we will continue our chapter, and this is the last part of our chapter. And after this, chapter 5, we will continue in our Zoom application. Come to our page number 46. This is our page number 46. Here, holidays are fun. आप सभी के holidays भी आपके लिए fun होते हैं. So, holidays are fun is the title of this story. Atif's holidays had begun. आतिफ के holidays शुरू हो चुके थे. He was very excited. वो बहुत excited था. He had some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. उसकी जो बहन है उसके हॉलीडेज़ के प्लान बहुत अच्छे प्लान्स थे. वो इन सारे प्लान्स को बताना चाहता था अपनी कज़िन शबाना को. सो ही रॉट हर अ लेटर. उसने एक लेटर को लिखा. सो लेटर लिखने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं. सो हियर इज़ द लेटर. डियर शबाना आपा, हेलो, how are you? I'm fine here, Appa. My holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 10/5/2018. It means 10/5 means May. 10 May 2018. I will be back on 20/5/2018. मतलब 20 मई 2018 को वो वापस आएगा. माई स्कूल विल री ओपन ऑन 4/6/2018. इट मीन्स 4 जून को 2018 को उसके स्कूल री ओपन होंगे. वैन डज योर स्कूल क्लोज एंड वाई डोंट यू कम हियर? वी विल हैव ग्रेट फन. बाय फॉर नाउ, अली. ओके, हियर उसने अपने हॉलीडे के प्लान्स को बता दिया और बोला कि आप क्यों नहीं आ जाते हमें ज्वाइन करने के लिए. ओके. शबाना, हु स्टेज इन नागपुर, गॉट दिस लेटर ऑन 13/5/2018. इट मीन्स 13 मई को उसे ये लेटर मिला. शी रॉट बैक टू आतिफ. उन्होंने वापस आतिफ अपने कज़िन को लेटर लिखा. फ्रॉम नागपुर. उसने अजमेर से लिखा था, इसलिए यहाँ पर ऊपर अजमेर और डेट डाली हुई थी. नागपुर कौन रहता है? शबाना. और उसने यहाँ पर डेट डाली है. डियर अली, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. हैप्पी हॉलीडेज. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1st June 2018. इट विल री ओपन ऑन 10th August. I will go on a school trip to Goa and will return on 7/6/18. It means 7 June 2018. I will try to come to Ajmer after that. By Shabana. Here she wrote letter to Ali. Ali wrote his letter on 7/5/2018. You remember how we write date in numbers. You can see here dates are written in 2 ways. Here 7/5/2018 and 7 May 2018. यहाँ पर नंबर्स की जगह पर
डेट्स तो हमारी जो डेट होती है वो नंबर्स में ही होती है, और मंथ होते हैं उसके लिए समटाइम वी आर यूजिंग नंबर्स एंड समटाइम वी आर राइटिंग दैट नेम ऑफ दैट मंथ. सो हियर वी कैन राइट दिस डेट इन 2 way. Okay, here we are completing our page number 46. Now come to our next page, page number 47. What to do here? Now write which dates this stand for. 10/5/18, it means 10 May 2018. 20/5/18, so 20 May 2018. In this way, 20 May 2018. 7/6/18, it means 7 June 2018. या आप डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हैं, बट 2018 कम्प्लीटली लिखा है हमने. जब हम इस तरह से लिखेंगे 1/6/18, इट मीन्स 1 June 2018. राइट दिस डेट्स इन नंबर. यहाँ पर हमको नंबर्स में लिखना है. यहाँ नेम ऑफ मंथ दिया है, हमको नेम ऑफ मंथ की जगह उस मंथ का नंबर लिखना है. आपको पता है ना, जनवरी 1 नंबर होता है, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5. इन दिस वे 6 जून, या मई 5 और 6 जून, इस तरह से नंबर्स होते हैं. कितने नंबर्स तक जाएंगे? 12 नंबर्स तक. 12th one is December. Here we have to write here 1/606. Similarly 30 May 2006. तो 30 May को हम कैसे लिखेंगे? 30 May means 5. 5th नंबर पे आता है ना हमारा May, so 06. 10 August 2007, तो हम इसे लिखेंगे अगस्त मतलब 8th month. 10/8/07. in this way. How long did it take the letter to reach from Ajmer to Nagpur? Here Shabana's holidays starting from 2 June 2018. इट मीन्स 2/6/18 को स्टार्ट हो रहे हैं और 10 जून को स्कूल रीओपन हो रहे हैं. मीन्स 10 को तो ओपन है, इट मीन्स 1 day बिफोर तक उसके हॉलीडेज हैं. तो 9 अगस्त 2018. सो यहाँ पर जून 30 days का होता है, तो हम उसे काउंट करेंगे. एंड देन जुलाई, देन अगस्त. जुलाई भी कम्प्लीटली हमको काउंट करना है, तो यहाँ के डेज काउंट करना है 30 डेट तक, देन 31 जुलाई के, देन 9 डेट अगस्त की, तो 68 डेज होते हैं टोटल. अलीज हॉलीडे स्टार्टिंग फ्रॉम 7/5/18 एंड schools are reopen on 4 dates, so up to 3 day he has holiday, so total days are 27. Who has got longer holidays, Shabana or Ali? So who got? Shabana got longer holiday. Next is, which long holidays do you get in school? Fill the table. यहाँ पर मैंने टेबल फिल किया है 2017-18 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग. हियर समर हॉलीडेज, वी आर गेटिंग ओनली 2 holidays. We are getting summer holidays and Diwali holidays. We are not getting Navratri and holiday after the exam, because after SA1 we are getting Diwali vacation, and after SA2 we are getting this summer holidays. So we have overall 2 holidays. Here from 1 May 2018 to 4 June 2018 we have holidays of 35 days. Next, Diwali vacation 16 October 2017 to 5 November 2017. It means we have holidays of 21 days. Okay, here summer holidays are long holidays and these are the short holidays. Here we are completing our page number 47. Now come to next page. This is our page number 48.
On 15 May 2017, Chandran went to a shop to buy butter. चंद्रन शॉप पर बटर खरीदने गया था उस किस डेट पर? 15 मई को. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. आपको पता है हम कोई भी चीज़ लेने जाते तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखते ही हैं. सो चंद्रन बटर लेने गया था, तब उसने उसके ऊपर की एक्सपायरी चेक की, मैन्युफैक्चर डेट चेक की. इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग. इट मीन्स जिस दिन बना है उससे नेक्स्ट 180 डेज तक वो सेफ है, बेस्ट है. Then he checked the date of packing. It was 15/1/2017. It means 15 January 2017. Help him find out if he should buy this butter or not. क्या उसे ये बटर खरीदना चाहिए, ये उसके लिए सेफ है, क्या वो ये खा सकता है कि नहीं. तो यहाँ पर In which month was the butter packed? बटर कब पैक हुआ था? 15th Jan 2017 को. Okay? Which month will it be 180 days after 15/1/17? So here 180 डेज हमको काउंट करना है कि यहाँ पर चंद्रन के पास कितने डेज रिमेनिंग थे? 17 डेज. एज यू ऑल नो जनवरी में 31 डेज होते हैं. सो 17 डेज जनवरी के रिमेनिंग थे. देन फेब 28 का है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30. सो टोटल कितने डेज होते हैं? क्या वो 180 है या 180 से ऊपर? तो वो हम चेक करते हैं. सो हियर टोटल डेज 167. कितने डेज हैं? 167 डेज हैं. तो यहाँ पर 6 मंथ मतलब 167 डेज हो रहे हैं जून तक के. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्सपायर डेट फाइंड आउट करनी है. तो 180 माइनस 167. ओके, तो कितने डेज बचते हैं? 13 डेज बचते हैं. ये 6 मंथ और 13 डेज, तो जून तो कंप्लीट हो गया है और जुलाई के 13 डेज. ओके, सो हैंस द डेट विल बी, डेट ऑफ एक्सपायरी विल बी 13 जुलाई 2007. ये तो हमने डेट ऑफ एक्सपायरी देख ली है. अब हमें बताना है क्या यहाँ पर कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15th मई? तो यस, बिल्कुल खा सकता है क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट तो जुलाई तक है, 13 जुलाई तक है. सो आंसर होगा, एक्सपायरी डेट कौन सी है? 13 जुलाई, और चंद्रन उसे खा सकता है. सो आंसर इज यस. Do you ever check the date of packing of things you buy? क्या आप लोग चेक करते हैं उसकी पैकिंग डेट? Have you seen medicine which have the expiry date written on them? Yes, हमने तो देखी है कितनी सारी मेडिसिन पर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है, मैन्युफैक्चर लिखी होती है. If it tells you after which date it is unsafe to take the medicine. अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद कोई मेडिसिन लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो अनसेफ होगा हमारे लिए. नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर. फाइंड आउट which are the other things that comes with an expiry date. कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं? On a cough syrup it was written. यहाँ पर कफ सिरप की बॉटल है, उसके ऊपर लिखा है मैन्युफैक्चर डेट. ये देखो 7/17 मतलब कौन सा मंथ? जुलाई 17. और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है 7/18. ओके, दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2017. और दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक. हम इसे कब तक ले सकते हैं उसका एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है. वॉट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/18. सो क्या लिखा है यहाँ पे? जुलाई 2018. कौन सा मंथ है? सेम मंथ है, 1 ईयर के लिए ये वैलिड है. वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन September 2018? सितंबर में ले सकते हैं. सो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि वो तो
2 month बिफोर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त सितंबर में वो एक्सपायर हो चुकी है। कब तक वैलिड है? जुलाई तक वैलिड है। ओके, हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर पेज, दिस पेज 48. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. टप्पू मिस्ड द ट्रेन. टप्पू स्कूल हैड क्लोज फॉर द समर हॉलीडेज. टप्पू के स्कूल क्लोज हो गए थे और वो समर वैकेशन पे गया हुआ था. He went to his grandma's place. ग्रैंडमा के प्लेस पे गया था. He met lot of his cousins there. वहाँ पर उसने काफ़ी सारे cousins मिले थे उसे. He was enjoying himself and didn't want to go back to home. उसे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और वो नहीं चाहता था अपने घर वापस जाना. So ममा यहाँ बोल रही हैं, टप्पू pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. यहाँ पर मम्मा बोल रही हैं कि 5:50 को हमारी ट्रेन चली जाएगी. ओह नो, वी आर गोइंग बैक सो सून. हम तो बहुत जल्दी घर वापस जा रहे हैं. आई विश वी मिस अवर ट्रेन. मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए. टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15. वो 30 की ट्रेन थी तो 15 मिनट पहले पहुँचे थे. बट गेस व्हाट, क्या हुआ आपको पता है? They had actually missed the train. वो अपनी ट्रेन मिस्ड कर चुके थे. कैसे? वो तो 15 मिनट पहले पहुंचे थे, फिर भी वो अपनी ट्रेन मिस्ड कर दी उन्होंने. यहाँ पर देखो, टप्पू खुश हो रहा है. हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. मैं आज नहीं जा रहा हूँ. कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन? आपको पता है किस लिए उन्होंने अपनी ट्रेन मिस्ड कर दी? हियर वी आर कंप्लीटिंग पेज नंबर 49. कम टू नेक्स्ट पेज. What happened here actually? Actually, the train had left at 5:30 in morning. आपको पता है कि हमारे 24 आवर्स होते हैं वन डे में, और रेलवे जो होती है वो 24 आवर का फॉर्मेट यूज़ करती है. आपको पता है हम मॉर्निंग का 1 होता है और आफ्टरनून के 1 को हम 13 लिखते हैं. मॉर्निंग नाइट टाइम पे जो 2 o'clock होता है हम 14 लिखते हैं. इसी तरह इवनिंग 5 जो है, इवनिंग 5 को वो लोग पहुँचे थे तब हो रहा था 17, और ट्रेन रेलवे के अकॉर्डिंग 17 आवर्स हो गए थे. इट मीन्स ट्रेन तो सुबह 5:30 बजे ही जा चुकी थी. टप्पूज पेरेंट्स वेर अपसेट. दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर. वो अपसेट थे और उन्होंने जा कर के स्टेशन मास्टर से कहा, आवर टिकट सेज 5:30. बट सर दिस मीन्स 5:30 in the morning. कब की है ट्रेन? सुबह की. द रेलवे विल राइट 17:30 for 5:30. 17:30 लिखती. अगर आपकी टिकट शाम की होती तो हम लोग 17:30 लिखते, पर आप तो ये तो 5:30 इवनिंग के लिए हम 17:30 लिखते. ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट. मैं कैसे इस तरह से ये भूल गया. So why? Because they use a 24-hour clock. यहाँ पर टप्पू के फादर बोल रहे हैं कि 24 आवर का फॉर्मेट यूज़ करते हैं रेलवेज, इसीलिए हमने हमारी ट्रेन को मिस कर दिया. Look at this chart. It tells the difference between your watch and a 24-hour clock. Try to complete it. इसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करो. टाइम बाय योर वॉच. हमारी जो वॉच होती है उसमें 12 नंबर्स होते हैं, बट एक्चुअली वो 2 टाइम्स रिपीट करती है. मैंने आपको बताया है कि 12 डेज के होते हैं और 12 नाइट टाइम के भी होते हैं. सो हियर 1 o'clock इन आफ्टरनून. आफ्टरनून की जो 1 o'clock होते हैं उसे हम 13 आवर्स लिखते हैं. 2 o'clock इन आफ्टरनून शोज 14. 3 o'clock इन आफ्टरनून शोज व्हाट? 15. Yes, 15. It shows 15 hour. Now, similarly, 3:30 in afternoon shows 15:30 hours. 6 o'clock in evening shows 18 hour according to 24-hour clock. 9 o'clock in the evening, 21 hours. Okay. 12 o'clock at midnight मतलब रात को. midnight means रात को 12 बजे. तो रात को 12 बजे से क्लॉक 0:00 पर सेट हो जाती है, क्योंकि तब 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं और अगेन वो सर्कल शुरू होने लगती है.
सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0000, सो 1 मिनट 2 मिनट यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, इन दिस वे 24 आवर क्लॉक वर्क्स. Here we are completing this page, page number 50. Now come to page number 51. Now can you tell me why a 24-hour clock is called so? 24-hour clock is useful where if किसी ने आपको बोला कि 1 o'clock आफ्टरनून को आना है, so you are getting confused if you are 1 o'clock of afternoon or night. So अगर आफ्टरनून के 1 है तो अगर आपको वो बोलता है 13 o'clock को आना है, सो यू आर मोर क्लियर अबाउट द टाइमिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, सो यू आर मोर क्लियर इन दिस 24-hour क्लॉक. सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट. अगर रात के 8:30 को ट्रेन जा रही है, द टाइम रिटन ऑन द रेलवे टिकट वुड बी. रेलवे टिकट पे किस तरह का टाइम लिखा होगा? सो रेलवे टिकट पे लिखा होगा 20:30, लिखा होगा 20:30. 24 आवर के फॉर्मेट में हमको AM PM लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. और जब हम 12 आवर क्लॉक का यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ध्यान से AM और PM इनका यूज़ करना पड़ता है. Here in a 12-hour clock, each time comes twice in a day. ये 2 टाइम ही आता है. मॉर्निंग में भी 5:30 होता है और इवनिंग में भी 5:30 होता है. 5:30 in the morning we can write in this way. हम इस तरह से लिखेंगे उसे is 5:30 AM. 5:30 in evening you can write in this way. आपको इस तरह से लिखना है 5:30 PM. What about 12:30 in afternoon? 12:30 इन आफ्टरनून के लिए क्या लिखेंगे? तो 12:30 के लिए हम लिखेंगे PM. आफ्टरनून के 12 होते हैं. 12 आफ्टरनून से पहले हम यूज़ करते हैं AM और 12 आफ्टरनून के बाद हम यूज़ करते हैं PM. और इसी तरह नाइट 12 नाइट के पहले हम यूज़ करते हैं PM एंड आफ्टर यूज़ करते हैं हम AM. ओके, क्लियर? सो दैट इज 12:30 PM. वो क्या होगा? 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock एट नून वी यूज़ PM टिल मिडनाइट. हम मिडनाइट तक क्या यूज़ करते हैं? PM. और मिडनाइट के बाद AM यूज़ करते हैं. यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट का टाइम पेपर में दिया होता है, न्यूज़पेपर में. राइट हियर यूजिंग AM एंड PM. आपको AM और PM के अकॉर्डिंग यहाँ पर सनराइज का टाइम लिखना है. सो हियर टाइम ऑफ सनराइज इज 6 AM इन मॉर्निंग एंड टाइम ऑफ सनसेट इज 3:30 PM. और ये वेरी करता है. अगर आप समर में क्या सनराइज सनसेट है वो डिफरेंट होता है और विंटर और समर में अलग अलग सनराइज और सनसेट होता है. हैव यू सीन 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड? आपने देखा है कहाँ कहाँ पर 24-hour क्लॉक यूज़ करते हैं? तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट. ऑन दिस प्लेस वी आर यूजिंग 24-hour क्लॉक. हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस पेज 51. Now here completing our chapter also, we'll continue our next chapter on our Zoom application.